Hello public, last lecture in probability. We'll do last part, Bayes theorem. Okay, now see what is Bayes theorem. If a1, a2, a3 an are mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive मतलब ये सब का intersection is how much 0 और exhaustive मतलब ये सब का union is equal to 1. एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन इज वन, एक्सक्लूसिव मतलब ये सब का इंटरसेक्शन इज हाउ मच, जीरो. And E is any event that occurs with A1, A2, A3 an, and the probabilities P of AI along with conditional probability of E with the condition that this means what, probability of E with A1, A2, A3 an as occurred are known, then the conditional probability A1 upon E is timber timber timber. This is the formula. Okay, प्रॉब्लम्स करते हैं. प्रॉब्लम्स में आपको समझ जाएगा कि क्या है ये, व्हाट इज बेस थ्योरम और कभी इसको यूज करना है. सी दिस प्रॉब्लम. Two bags contains white and red balls. First bags contain timber timber ball, second ball contains timber 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 ball. वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकेंड बैग. इसमें से एक बॉल इसमें डाल दिया है. देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाट, रेड. सेकेंड बैग का बोला है उन्होंने, द बॉल इज व्हाट, रेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड. यहां से हमको वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. ठीक है, देखो अभी हम लोग कैसा लिखते हैं. A1 और A2 को हम लोग डिफाइन करेंगे. Let us suppose A1 be the event that a white ball is transferred from the first bag. ठीक है. And what is A2? A2 be the event that a red ball is transferred from the first bag. And E be the event. E क्या रहने वाला है, E जो हुआ है इवेंट, सेकेंड बैग में से बॉल इज व्हाट, रेड. अ रेड बॉल is drawn from the second bag. A red ball is drawn from the second bag. अभी आप देखिए, what is given, red ball is drawn from the second bag, find the probability that a white ball is transferred. मतलब मुझे find क्या करना है, probability that a white ball is transferred from the first bag where it is given that the second bag में से ball कौन सा है, red. ये मुझे find करना है. ये झेपा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वाइट बॉल. वाइट बॉल इज व्हाट, A1 व्हेन इट इज गिवन दैट सेकेंड बैग में से कौन सा बॉल ड्रॉ किया है, रेड बॉल. तो मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन E. नाउ सी, A1 white ball is transferred from the first bag. So what is probability of A1? Probability of A1 कितना आ जाएगा, white ball is transferred from the first bag. Total number of balls 5 plus 3 8. White ball is drawn from the first bag. Probability will be how much, 5 upon 8. What is probability of A2? Red ball is transferred from the first bag. उसका probability कितना आ जाएगा, 3 upon 8. देखना red ball कितने हैं, 3. झेपा क्या. Now when a white ball is transferred from the first bag to the second bag, it will contain 5 white and 4 red balls. Correct ना. पहला, अगर if it is given that a white ball is transferred from the first bag and a red ball is drawn. झेपरा का बुड्ढा क्या बोल रहा है, देखो भैया इसमें से एक व्हाइट बॉल इसमें गया, इसमें कितने हो गए, 5 व्हाइट और 4 रेड. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 9. निकालने के कितने हैं, 4. प्रोबेबिलिटी दैट
this is drawn will be what, 4 upon 9, and probability that a red ball is drawn when it is given a red ball is drawn from this bag. यहाँ से रेड बॉल यहाँ गया तो यहाँ कितने रेड बॉल हो गए, 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 5 अपॉन 9। ये समझ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड व्हेन व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड व्हेन अ रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग। आपको फाइंड क्या करना है अभी, बाय बेस थ्योरम। देखिए आपको फाइंड क्या करना है बेस थ्योरम के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको फाइंड करना है व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 upon e. This will be probability of a1 into probability of e upon a1, formula whole upon probability of a1 into probability of e upon a1 plus probability of a2 into probability of e upon a2। जस्ट आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के, जो भी रहेगा ये a1 अपॉन e रहेगा, तो आपको क्या फाइंड करना है, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन a1, और जितने भी इवेंट्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला में मैंने देखो क्या दिया है, समेशन, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ai प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए आई, जितने भी इवेंट्स रहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मुझे मालूम है फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, और प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a1, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 वाज व्हाट, 5 अपॉन 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन a1 कितना था, 4 अपॉन 9, होल अपॉन 5 अपॉन 8 इंटू 4 अपॉन 9, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 कितना था, 3 अपॉन 8 इंटू 5 अपॉन 9, करेक्ट। तो दिस विल बिकम 8 अपॉन 9, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, नीचे हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, 20 प्लस 15 विल बी 35, तो योर आंसर विल बी हाउ मच, 4 अपॉन 7। नहीं समझा है, और एक देखिए, अभी 3 bags contains respectively 5 white and 10 black balls, timber balls. One ball is selected at random and 2 balls are drawn from it. One bag is selected and 2 balls are drawn from it, and if both the balls are black, what is the probability that they are from the second bag? सी, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हमको क्या पूछते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, बॉल ड्रॉन इज वाइट, बॉल ड्रॉन इज रेड। बेस थ्योरम में क्या बोलते हैं, इट इज गिवन कि बॉल ये कलर का है या कोई भी कलर का है, और आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ड्रॉन फ्रॉम विच बैग, ऐसा कुछ रहेगा तो यू हैव टू यूज व्हाट, बेस थ्योरम। अभी इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट अस सपोज a1 be the event that first bag is selected, करेक्ट ना, पहले आपको बैग सिलेक्ट करना है, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, a2 be the event second bag is selected, a3 be the event third bag is selected, and e be the event that how many balls are drawn, 2 balls, and both are what, black, so we can say 2 balls drawn are what, black, करेक्ट ना, दोनों बॉल्स क्या है, ब्लैक है, 2 balls आर ब्लैक। आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द बैग इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग व्हेन इट इज गिवन दैट द बॉल इज ब्लैक। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 व्हेन इट इज गिवन दैट द बॉल इज ब्लैक। अगर वो लोग पूछते थे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, हम लोग फाइंड करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 अपॉन e। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है शायद। अभी देखिए आपको फाइंड करना है, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ बैग्स 3, first bag is selected 1 by 3, what will be probability of a2, 1 by 3, what will be probability of a3, 1 by 3, okay। Now what is probability that the ball drawn, both the balls are black when the first bag is selected, कितने बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, 2, फर्स्ट बैग का देखो, फर्स्ट बैग में कितने हैं, 10 और 5 15,
15 में से 2 सिलेक्ट करने के कितने वेज में, 15C2। बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक, इट विल बी 10 में से 2, 15 में से 2। तो दिस विल बिकम 10 इंटू 9 अपॉन 15 इंटू 14। कैंसिल बिंसल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो इसको मिलेगा प्रोबेबिलिटी कितना, 3/7। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट the ball is black when it is drawn from the second bag। सेकेंड बैग में ब्लैक बॉल कितने हैं, 10। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 20। तो ये कितना आ जाएगा, 10C2 अपॉन 20C2। दिस विल बी 10 इंटू 9 होल अपॉन 20 इंटू 19। So this will become how much, 9 upon 38। Okay, and third wala, find the probability that the ball drawn is black when it is drawn from the third bag। थर्ड बैग में कितने हैं बॉल्स, ब्लैक 5 और ये कितने हैं 15 टोटल। तो ये आ जाएगा 5C2 अपॉन 15C2, 5 इंटू 4 अपॉन 15 इंटू 14। ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 7 से। सो दिस विल बिकम हाउ मच, 2/21। ऑल डेटा सब कुछ दिया है। बाय बेस थ्योरम आई विल राइट ओनली द फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसा लिखते हैं देखो, आपको क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द second bag when it is given that the ball is black। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अपॉन E, इसको स्टार्ट किससे करना है, A2 से ऊपर। इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A2। अभी पहले से सबको ऐड कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय A3। ऑल प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, सब्सटीट्यूट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं समझा है तो देखिए, इफ E1 एंड E2 आर equally likely, mutually exclusive and exhaustive events। equally likely मतलब probability of E1 is equal to probability of E2। this is equal, and probability सबका दिया है, we want to find probability of E1 upon A। what will be probability of E1 upon A by Bayes theorem? probability of E1 upon A तो आएगा probability of A into probability of A by E1 whole upon probability of A into probability of A by E1 plus probability of, sorry, ए नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, E1 ना। देखना भाई, प्रोबेबिलिटी जो नीचे रहता है वो लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, बराबर। नाउ व्हाट इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 दे आर इक्वल, तो इसको कॉमन लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। तो दिस विल बिकम 0.2 अपॉन 0.5, दिस इज 2/5। जेपा क्या सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। फॉर्मूला देख भाई, बेस थ्योरम का फॉर्मूला देख, फॉर्मूला देख, फॉर्मूला देख, फॉर्मूला देख। probability of, formula देख, A1 upon E is what, probability of A1 upon probability of E upon A1। okay, just remember the formula, आपको आंसर मिल जाएगा, but you must know where to use Bayes theorem। next problem, again one more problem on Bayes theorem, this is my favorite, important। A speaks truth 4 out of 5 times। ओके, 5 में से 4 बार वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। अ डाई इज टॉस्ड, he reports that there is a 6, what is the chance that actually there was what, 6। मतलब A speaks
truth. A speaks truth. So let us suppose A1 be the event that A speaks what? Truth. A2 be the event that A tells a lie. And E जो आपका event रहता है, that actually there is a 6. A reports a 6 when a die is thrown. Correct? Now A speaks truth 4 out of 5 times. So probability of A1 will be 4 upon 5. So probability of A2 will be how much? 1 upon 5. Correct? A2 is what? He tells a lie. Speaks a truth 4 by 5. So this will be what? 1 by 5. Now what is the meaning of probability of E upon A1? This means what? Probability that A E मतलब A reports a 6, correct, and A speaks truth. अगर A1 मतलब क्या? A speaks truth मतलब एक्चुअली आपको क्या मिलने वाला है? 6. So what is the probability that when a die is thrown you will get 6 1 upon 6? झेप रहा है क्या? सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A2, मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट A रिपोर्ट्स अ 6 एंड A टेल्स लाय. A2 म्हणजे काय? A टेल्स लाय म्हणजे 6 येणार नाही. 6 येणार नाही म्हणजे काय येणार? आयदर 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. सो प्रोबेबिलिटी विल बी हाउ मच? 5 upon 6. झेपा क्या? देखो बाबा प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, माय फेवरेट प्रॉब्लम. A speaks truth 4 out of 5 times. मतलब probability that A speaks truth is 4 by 5. Therefore, he tells a lie will be 1 by 5. A die is tossed. He reports there is a 6. What is the chance that actually there was 6? Actually there was 6. मतलब वो सच्ची बोल रहा है. मतलब आपको फाइंड क्या करना है? Probability of E upon A1. He reports 6 and tells truth. Actually there was 6 मतलब he speaks truth. तो आपको ये फाइंड करना है. तो what is Bayes theorem? By Bayes theorem what you will get? C. By Bayes theorem probability that he speaks what? Truth. Correct? And actually there was what? 6. तो आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन E. तो दिस विल बी हाउ मच? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A1, और जितने भी इवेंट्स है उसको ऐड करने हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन A2. What is probability of A1? It is what? 1 by 6, sorry, 4 by 5. Probability of E upon A1 is 1 by 6 whole upon, this will become how much? 4 by 5 into 1 by 6 plus 1 by 5 into 5 by 6. तो 4 into 1 ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 4 plus 5. 4 4 कैंसल, 1 upon 5. पागल जैसा मत लिखो, 4 4 कैंसल नहीं होता है. 5 plus 4 it will be 9. So your answer will be how much? 4 upon 9. Answer will be how much? 4 upon 9. These 4 problems were based on what? Bayes theorem. और थोड़े बहुत प्रॉब्लम करते हैं. What is the probability that a year selected at random, a year selected at random will have 53 Sundays? Okay, now इसमें not given whether it is a leap year or a non-leap year. Okay, now in a leap year there are how many days? There are 366 days, that is 52 weeks
and 2 additional days. Now since there are 53 weeks, so 52 weeks, so 52 Sunday है, 52 Monday है, 52 Tuesday dot 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 52 Sundays है. Now it will have 53 Sundays. That depends on what? These 2 additional days. Now all the possibilities of those 2 additional days will be what? Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, and Sunday, Monday. So n of s कितना हो गया आपका? 7. n of s कितना हो गया आपका? 7. What is the probability that it will have 53 Sundays? मतलब फर्स्ट डे सैटरडे, सेकेंड डे संडे और संडे मंडे. कितने सैंपल पॉइंट से? 2. So probability that it will have 53 Sundays will be how much? 2 upon 7. It is always number of additional days whole upon 7. जितने भी एडिशनल डेज रह गए अपॉन 7. अगर फॉर अ नॉन लीप ईयर और इन अ नॉन लीप ईयर there are how many days? There are 365 days. 365 days means what? 52 weeks and 1 additional day. So that one day can be what? Either Sunday or Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday or Saturday. तो आपका n of s कितना आता है? 7. और probability that it will be a Sunday is how much? 1 upon 7. समझ रहा है क्या? Very good. Now it is given in this problem. What is given? It is given in a year, है ना? So that year can be a leap year or a non-leap year. Correct. Now leap year हमेशा कितने आता है? 4 साल में एक बार आता है. So what is the probability that a year is a leap year will be how much? Out of 4, 1 year is always a leap year. So it will be what? 1 upon 4. And probability that a year is not a leap year will be how much? 3 by 4. Okay. So आपका आंसर कितना आएगा? A year is a leap year and it will have 53 Sundays. Or a year is a non-leap year and it will have 53 Sundays. तो आपका आंसर कितना होता है? 5 upon 28 when it is not specified whether it is a leap year or a non-leap year. If it is specified it is a leap year, it will be how much? 2 upon 7. अगर पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देर आर व्हाट? 53 संडेज और 53 मंडेज. 53 संडेज सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे. तो 53 संडेज और 53 मंडेज इट विल बी हाउ मच? 3 upon 7. Find the probability that in a non-leap year there are 53 Sundays or 53 Mondays. तो ये तो 7 ही रहता है हमेशा. संडेज ये वाला रहेगा. तो संडे और मंडे, तो और मीन्स एड, इट विल बी हाउ मच? 2 upon 7. But when it is not specified whether a year is a leap year or not a leap year, it will be how much? 5 upon 28. Please remember leap year चिंदी problem है उसके. For example, if you consider a problem in the letters of the word, in the letters of the word statistics,
STAT, statistics, okay, are arranged at random. Find the probability that the three T's are together. Find the probability that three T's are together. ओके भाई, देखते हैं। अभी वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब STATISTICS, करेक्ट? ऐसा लिखेंगे, रिपीट है तो आपको इजी हो जाएगा। रिपीटेशन हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका n ऑफ s कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल होल अपॉन s इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, रिपीट हो रहा है तो डिवाइड, रिपीट हो रहा है तो डिवाइड, रिपीट होता है तो डिवाइड। लास्ट लेक्चर में भी किया था, रिपीट होता रहेगा तो डिवाइड करो। आपको क्या बोला है? 3 T's आर टूगेदर। जब भी टूगेदर रहेगा तो SSSAIIC, और ये 3 T को हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं? एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 can be arranged in how many ways? 8 factorial ways. S is repeating 3 times, I is repeating 2 times. टी तो एक ही कंसिडर किया है। अगर इनको अरेंज किया तो दिस विल बी अरेंज ओनली वन वे, क्योंकि इट विल बी इन 3 फैक्टोरियल, और रिपीट हो रहा है तो डिवाइड, तो 1 ही आने वाला है। चिंदी समझा रहेगा तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? इट विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऊपर चला गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, 3 कैंसिल, दिस विल बिकम 5। तो your आंसर विल बी हाउ मच? 1 अपॉन 15। झेप रहा है क्या? और एक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी are arranged, find the probability that i's are not together. ओके, आई, ऑल आईज आर नॉट टुगेदर। ठीक है भैया, UNIVERSITY, सिर्फ आई रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, व्हाट विल बी योर n ऑफ s? 10 फैक्टोरियल, आई इज रिपीटिंग तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, करेक्ट? नाउ आई आर नॉट टूगेदर मतलब बाकी के हम लोग बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस 8 कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल वेज। बाकी आई के लिए कितने जगह है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 places दोन आईज कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 9p2, लेकिन 2 रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो व्हाट विल बी योर आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, दिस इज ए, probability of a will be 8 factorial into 9p2 is 9 into 8 upon 2 factorial whole upon 10 factorial upon 2 factorial। इसका हो गया हैप्पी बर्थडे। सो दिस विल बिकम 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 होल अपॉन, दिस विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। योर आंसर विल बी हाउ मच? 4 अपॉन 5। टिंग टिंग टिंग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल डू। लेट E be the event which is neither a certain event. Certain event means what? Probability is not equal to 1, not an impossible event मतलब probability not equal to 0. E का probability is not equal to 1 and not equal to 0. Then and if P of E is timber timber timber, P of E dash is timber timber timber, find P of E. नाउ आपको मालूम है सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई डॅश म्हणजेच प्रोबॅबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ ई डॅश दिस इज इक्वल टू 1. Therefore, it will become 1 plus lambda square plus 1 plus 2 lambda square. This is equal to 1. 2 lambda square plus 3 lambda plus 1 is equal to 0. So 2 lambda square plus 2 lambda plus 1 is equal to 0. So lambda is equal to -1 or lambda is equal to -half. ये हम लोग करेंगे सब्सटीट्यूट. फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? अगर -1 डाला तो 1 - 1 + 1 दिस विल बी 1. नॉट पॉसिबल बिकॉज ई इज नॉट अ सर्टन इवेंट. अगर -half डालते हैं तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? इट विल बी 1 - half + 1/4. तो 4 - 1 4 - 2 2 + 1 this will become how much? 3/4. So this is my answer. जेपा क्या? Because 1 रहेगा तो this will become what? This will become a certain event. If 1 it is a certain event but it is given it is not a certain event. So probability of E is not equal to 1, it is not equal to 0. So probability of E is how much? 3/4. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 1 कार्ड इज ड्रॉन. तो आपका एन ऑफ एस तो आपको मिल गया है खटाक जैसी. एन ऑफ एस कितना आ गया आपका? 52. 1 कार्ड इज ड्रॉन. अ पर्सन गेसेस दैट इट इज अ स्पेड कार्ड और एन एस कार्ड. स्पेड कार्ड कितने रहते हैं? देर आर 13 स्पेड कार्ड्स एंड 4 ace cards. Correct. What are the odd against a person that he guesses his guess is true? अगेंस्ट पूछा है उसने. ओके. नाउ ये 13 स्पेड कार्ड आपने लिया है और 4 एस कार्ड लिखा है. यहाँ एक स्पेड का एस कार्ड हम लोग ने इंक्लूड कर दिया है बिकॉज दिस कंटेन्स व्हाट? एक्का दुर्री तिर्री एंड जैक क्वीन किंग. So this ace card here we have included and here we have written 4. तो ये 4 नहीं चाहिए. ये कितना होना चाहिए? 3. Remaining 3 ace cards. So total number of cards are how many? 16. Either a spade card or an ace card. उसमें से कितना निकालना है आपको? एक. तो your n of a will be how much? 16c1 which is 16. So what will be your probability? It will be what? 16/52. तो this will become कितना आ जाएगा? 4/13. 4/13 को कैसे लिखते हैं? ये रिपीट होना चाहिए. 4 ऊपर जो भी है वो नीचे आना चाहिए. 4/4 + 9. पूछा क्या है? अगेंस्ट. अगेंस्ट रहेगा तो ऊपर वाला बाद में आता है. सो ऑड अगेंस्ट विल बी व्हाट? 9:4. दिस इज अगेंस्ट. अगर फेवर में रहेगा तो क्या आएगा? 4/9. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था. अगेंस्ट रहेगा तो ऊपर वाला हमेशा किधर रहता है? बाद में आता है. फेवर रहेगा तो ऊपर वाला पहले आता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम. इन अ टेस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60 passed in mathematics. मतलब 100 में से 60 पास हो गए. प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज हाउ मच? 60/100. 70 passed in English. Probability of E is how much? 70/100. And 20 failed in both. मतलब m dash intersection E dash. This will become how much? This will become 20/100. Correct? 20/100. We want to find the probability that a student selected at random has passed in mathematics if it is known that he has passed in English. So probability that he has passed in mathematics when it is known that he has passed in English. तो आपको find क्या करना है? Probability of m/e. इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन e अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ e. ठीक है. तो आपको फाइंड करना है. ये दिया है आपको, सिर्फ ये फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ m डैश इंटरसेक्शन e डैश. इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ
M union E the whole dash? अरे भैया, this is De Morgan's law. So how much will be probability of M union E? 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80/100. झेपा क्या? अभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन ई पता है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एम पता है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई फाइंड कर सकते. दिस 3 इज गिवन, यू कैन फाइंड दिस, सब्सटीट्यूट हियर, यू विल गेट द आंसर. This is by which law? This is by De Morgan's law. Probability of A dash intersection B dash is probability of A union B the whole dash. Probability of A dash intersection B dash is probability of A union B the होल डैश. टिंग टिंग टिंग, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये फाइंड हो जाएगा. ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर. टिंग टिंग टिंग. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. A bag contains 3 red, 2 white balls. Second bag contains timber balls. One ball is selected from the first bag and is transferred to the second bag. Then a ball is drawn from the second bag. Find the probability that the ball drawn is what? A red ball from the सेकेंड बैग. सी बेस थ्योरम और इसमें फर्क क्या है? इसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, बॉल इज वाइट. उसमें क्या रहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गिवन दैट द बॉल इज रेड, यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग और इट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग. फर्क देखिए अभी, फर्स्ट बैग और सेकेंड बैग. फर्स्ट बैग में क्या क्या है? 3 रेड एंड 2 वाइट. सेकेंड में कितना है? 2 रेड एंड 4 वाइट. फर्स्ट बॉल में से लेट ए बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग is red and from second bag is red, or बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग इज वाइट एंड सेकेंड बैग का तो उन्होंने रेड दिया ही है. सेकेंड बैग में से हम कौन सा बॉल ड्रॉ कर रहे हैं? रेड बॉल. फर्स्ट बैग में से यू कैन ड्रॉ आइदर अ वाइट बॉल और अ रेड बॉल. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर ड्रॉइंग अ red ball from the first bag? What is the probability? Total probability will be probability of A plus probability of B, either this event or this event. देखिए क्या आएगा. What is the probability that the red ball is drawn from the first bag? Total balls 5, निकालने के कितने में से? 3 में से. Now when this red ball is transferred from first bag to the second bag, it will contain 3 red and 4 white balls. We have to draw a red ball. What is the probability? 3/7. और means plus again initial condition, वापिस ये सब नॉर्मल हो गया. 3 रेड और 2 वाइट है, आपको वाइट बॉल ड्रॉ करना है. देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने वाइट बॉल. What is the probability that the white ball is drawn? 2/5. When this white ball is transferred from this bag to this bag, it will contain 2 red and 5 white balls. And what is the probability that the ball is red? It will be how much? 2/7. झेपा क्या भैया? Either you can draw a red ball or you can draw a white ball from the first bag, but from the second bag we have to draw which ball? Only red ball. इसमें से रेड बॉल इधर गया पहला केस में, 3 लाल 4 वाइट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3. प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 3/7. When a white ball is transferred, it contains 2 red and 5 white. Total number of balls 7. Total number of red balls 2. Probability will be 2/7. So your answer will be how much? नीचे तो हो गया 35, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 9 plus 4 13. So this will become how much? 13/35. झेप रहा है क्या बॉल्स की प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज देखो. Number between 7,000 and 8,000 are formed using the digits timber without repetition. Find the probability that the number is divisible by 5. कल के वीडियोस में भी हम लोग ने किया था. 4 digit number is to be formed, 1 2 3 4.
इधर जीरो नहीं डाल सकते बिकॉज इट विल बिकम व्हाट, अ 3 digit नंबर. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड either by 1 3 5 7 9 in how many ways, 5 ways. एक नंबर इधर चला गया, बाकी बच्चे 4 और ये भी एक 0, बाकी बच्चे 5 4 और 3. सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज. We want to find the probability that the number should be between 7,000 and 8,000. 1 2 3 4. तो ये पोजीशन में फिक्स्ड हो गया 7, and the number should be divisible by 5. The number is divisible by 5 if in the units place we have 0 or 5. तो n ऑफ a कितना हो जाएगा, ये 1 वेज में, ये 2 वेज में, दो नंबर चले गए, बाकी बच्चे कितने, 4 बच्चे, तो ये 4 वेज में और ये 3 वेज में. तो आपका n ऑफ a कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2. So what will be your probability? Probability of A will be 4 into 3 into 2 whole upon 5 into 5 into 4 into 3. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. This will become how much? 2 upon 25. 4 digit numbers are formed using the digits timber 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 without repetition. Find the probability that the number is what? Less than 4000. नाउ डिजिट्स कोणचे कोणचे दिए है, 4 digit नंबर. टोटल पॉसिबिलिटीज, इकडं 0 नाही येऊ शकत, इकडं काय येऊ शकतं, 1 2 5 6 9. दिस हाउ मेनी वेज, 5 वेज. यहाँ पे 0 आ सकता है 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज. तो दिस इज ऑल पॉसिबिलिटीज, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. We want to find the probability that the number is less than 4000. Less than 4000 matlab this place can be filled either by 1 or 2, because 4 digit number form करना है, तो 0 नहीं आएगा, 0 आएगा तो it will become a 3 digit number. So this place can be filled in 2 ways. तो एक नंबर इधर चला गया, बाकी कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक चला गया, इधर कितने बच्चे, 5 बच्चे, इधर 4 बच्चे, इधर 3 बच्चे. So what will be your probability? Probability will be how much, 2 into 5 into 4 into 3 whole upon 5 into 5 into 4 into 3. अरे वाह, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. दिस विल बिकम हाउ मच, 2 अपॉन 5. चिंदी प्रॉब्लम शायद आपको समझ रहे हैं. 10 पेपर्स आर टू बी सेट at an examination, out of which 2 are on what, 2 of which are in physics. Find the probability that 2 physics papers are not consecutive. Not consecutive मतलब क्या है, not together. इसके ऊपर भी हम लोग ने बहुत प्रॉब्लम्स किए थे. टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, 10. नाउ 10 पेपर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 10 फैक्टोरियल वेज. दो फिजिक्स के पेपर्स निकाल दिए, तो बाकी के 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी ways 8 papers can be arranged, 8p8, that is 8 factorial ways. बाकी के दो फिजिक्स पेपर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी प्लेसेस, 9 प्लेसेस. हाउ मेनी पेपर्स, 2 पेपर्स. हमेशा एक एक्स्ट्रा आता है, कितनी बार मैंने बोला है आपको, देखो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नो, दे आर नॉट कॉन्जिकेटिव. नॉट कॉन्जिकेटिव का मीनिंग क्या है, नॉट टूगेदर. नॉट टूगेदर रहेगा तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है. सो व्हाट विल बी योर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी विल बी हाउ मच, इट विल बी 8 फैक्टोरियल. 9p2 म्हणजे 9 इंटू 8 होल अपॉन 10 फैक्टोरियल. तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी हैप्पी बर्थडे हो गया. आपका आंसर कितना आ गया, 4 अपॉन 5. Ting 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 ting. Next problem. A committee of 4 boys and 3 girls is to be formed from 8 boys and 5 girls. ठीक है भाई, 8 boys दिए हैं, 5 girls दिए हैं, निकालने के कितने हैं, 4 and 3. तो आपका n of s, दिस इज सिलेक्टेड. सिलेक्टेड में क्या यूज करना है आपको, कॉम्बिनेशन. n of s will be how much, n of s will be 8c4 into 5c3.
ओके 8C4 इंटू 5C3, वापस लिखता हूँ, लिखने को नहीं हो रहा है, 8C3 इंटू 5C3। आगे बढ़िए, वन ऑफ द बॉयज is what brother of one of the girls. Find the probability that both boys, brother and sister are what included. इसका मीनिंग आपको आपने किया था, इंक्लूड करना है। 8 बॉयज में से एक को मैंने पहले से इंक्लूड कर दिया है, तो बाकी बच्चे कितने 7 और निकालने के कितने हैं 3, क्योंकि एक पहले से सिलेक्टेड है। सिमिलरली 5 गर्ल्स में से 1 गर्ल इज सिलेक्टेड, मतलब बच्चे कितने 4, निकालने के कितने हैं 2। झेपा क्या? क्योंकि एक को मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया है। सो व्हाट विल बी योर एन ऑफ ए? 7 में से 3 और 4 में से 2। सो दिस इज व्हाट एन ऑफ ए, डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके जगह पे अगर उन्होंने दिया है ब्रदर एंड सिस्टर आर व्हाट एक्सक्लूडेड, अगर लिखा है, अगर सपोज नेक्स्ट में लिखा है एक्सक्लूडेड, मतलब 8 बॉयज में से एक को एक्सक्लूड किया तो बच्चे कितने 7, निकालने के कितने हैं 4, और गर्ल्स कितने बचेंगे 4, निकालने के कितने हैं 3, बिकॉज 1 बॉय एंड 1 गर्ल आर व्हाट एक्सक्लूडेड। इन दिस केस आपका क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी 7C4 इंटू 4C3। टोटल आपको कितने निकालने के हैं 7। यहां कैसा हो गया, आपने यहां 5 निकाले हैं, लेकिन 2 पहले से आपने ले लिए हैं, एक ब्रदर एंड सिस्टर आर व्हाट इंक्लूडेड इन द कमिटी। समझ रहा है शायद थोड़ा थोड़ा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन आर अरेंज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अरेंजमेंट विल बिगिन विथ ओ एंड एंड विथ ए। इक्वेशन, EQUATION. How many letters? 8. They can be arranged in how many ways? 8 factorial ways. आपको क्या बोला है, फर्स्ट उन्होंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। बिगिन विथ ओ, मतलब यहाँ पे ओ फिक्स कर दिया, एंड एंड विथ ए, यहाँ पे ए फिक्स कर दिया। बाकी बच्चे कितने 6 बच्चे, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल वेज। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। अगर उन्होंने बोला है फॉर एग्जाम्पल बिगिन एंड एंड with an vowel, ओके, विथ अ वॉवेल, तो आपको इक्वेशन में वॉवेल्स कितने हैं? ई, ए, आई, ओ, करेक्ट, ई, ए, आई, ओ और यू भी है, करेक्ट। तो 8 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिगिन एंड एंड विथ व्हाट? एन वॉवेल। तो कितने वॉवेल्स है 5, जगह कितनी है 2। दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 5p2 वेज, बराबर है ना। तो यहां पे 3 चले गए, 2 चले गए, आपका क्या क्या बचा है QTN। ये इसमें से 2 चले गए, बच्चे कितने 3, और ये कितने 3, 6 बच्चे, और जगह कितनी है 6। दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 6p6, दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज। झेपा क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको? सी इधर सिर्फ 2 जाने वाले, ये कंपलसरी एंड वाले क्या चाहिए? वॉवेल चाहिए आपको, लेकिन बाकी के इसमें बीच में भी वॉवेल्स आई गई ना, लेकिन स्टार्ट एंड एंड विथ व्हाट? अ वॉवेल। तो वॉवेल कितने हैं 5, 5 में से यहां जगह कितनी है 2। दे कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 5p2 वेज। बाकी फिर बच्चे कितने 6, 6 कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज। नहीं समझा है तो अगर ऐसा लिखा है फॉर एग्जाम्पल बिगिन विथ अ वॉवेल एंड एंड विथ अ कंसोनेंट, ओके, बिगिन विथ अ वॉवेल एंड एंड विथ अ कंसोनेंट, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 है बिगिन विथ अ वॉवेल, तो ये प्लेस के क्या डाल सकते हैं आप लोग, ए ई आई ओ या यू, और ये प्लेस में आप क्या डाल सकते हो, क्यू टी और एन। तो देखिए ना आप, तो यहाँ कितने हैं वॉवेल्स, 5, जगह कितनी है, 1। दिस कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 5p1 वेज। कंसोनेंट्स कितने हैं, 3, जगह कितनी है, 1। दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 3p1 वेज। एक इधर गया, एक इधर गया, बाकी बच्चे कितने, 6, और ये कितने हैं, 6। दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 6p6 वेज। ठीक है। अगर उन्होंने पूछा वॉवेल्स आर टूगेदर, वॉवेल्स आर टूगेदर, थोड़ा सा शाइनिंग मार रहा है, मैं टूगेदर रहेगा तो हमेशा आपको क्या करना है, एक कंसीडर करना है, मतलब ये A E I O U एक हो गया, और ये क्या बचा है आपका, Q T और N, Q T और N। तो 1 2 3 and 4, 4 कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल वेज। और ये क्या है, 1 2 3 4 5, दिस 5 कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल वेज। सो दिस इज योर n ऑफ d, सबको डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल करो, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये सब था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।